Assalamualaikum class 9. We have started unit number 3 periodic table and periodicity. Today we are going to read about trend of atomic radius in periodic table. What is periodic table? Periodic table shows all the known elements in the universe. We organizes the elements by their chemical properties. And these elements are organized on the basis of their atomic number. Periodic table is divided into groups and periods. The vertical rows of elements in the periodic table are called groups, and there are 18 groups from left to right. The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. There are 7 periods from top to bottom. Here you can see there are 18 groups. Elements in the group 1 and 2 are called the representative elements or group A. Elements present in the group 13, 14, 15, 16, 17, they are also the elements of the representative elements or group A elements. Whereas the group B are called the transition elements. Transition elements are divided into inner transition elements and outer transition elements. Whereas period number are from 1 to 7 in the periodic table. Each row or period is the energy level for s and p orbitals. Now we come to the main topic, which is periodic trend. Today we have to describe the trends among the elements for atomic size. First, we must know what are the periodic trends. Properties of elements change in a predictable way as you move through the periodic table. These systematic variations are called periodic trends. Why the element shows the periodic trend? This is all because of atomic number. As I already mentioned, periodic table is arranged on the basis of atomic number. And we all know that electronic configuration is based upon atomic numbers. So, the arrangement of elements according to the increasing atomic number shows the periodicity, which is repetition of the properties after regular intervals in the electronic configuration of the elements that leads to the periodicity in the properties. The arrangement of elements in the periodic table into groups and periods with predictable properties allow us to assume certain patterns in the electronic configurations. Some properties of the elements follow the predictable patterns in the periodic table. These properties are atomic radius, ionization energy, metallic character, and electronegativity. Today we will discuss trend in atomic radius. First of all, we must know the size of atom is difficult to measure. Why? Because atom has no definite boundary. Atom is very small in size. We can't see atom because atom is very small in size. And the thing which we can't see, we don't know from where it start, where it end. So for our convenience, we consider atom is spherical. एटम जो है वो स्फेरिकल है और एटम्स जो हैं एक एटम दूसरे एटम के साथ ही जो है वो पड़ा होता है. एटम की लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ में पड़ी होती हैं.
तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है। एटॉमिक रेडियस है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एटम्स. तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हैं और वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ साथ जो है वो जुड़े हुए हैं. अब एक एटम का न्यूक्लियस जो कि उसके सेंटर में होता है, एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम आधा कर लें तो इसका मतलब है कि ये एक एटम का रेडियस बनता है. इन मैथ यू नो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर बाउंड्री. So we can say atomic radii is the half of the distance between the nuclei of the two like atoms. Now what is the atomic radius trend? As you move down a group, atomic radius increases, and as you move left to the right across the period, atomic radius decreases. Here in this picture you can clearly see the trend of atomic radius कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो आपको एटम का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है, और अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन अ पीरियड तो एटम का जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्मॉल हो जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? Now we have to give the reasons why atomic radius increases in the group while it decreases in a period. First of all, we will look at the period. As you move across the period, you gain electrons, but you also gain protons. More protons hold their electrons tighter. Now what happens here? जब हम लेफ्ट टू द राइट मूव करते हैं, ये यहाँ पे लिथियम जो है ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड का, और फ्लोरीन जो है वो सेकंड एलिमेंट है, सॉरी लास्ट एलिमेंट है सेकंड पीरियड का. तो हम एक पीरियड से मूव कर रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन. तो लिथियम का जो साइज है वो बड़ा होता है लेकिन फ्लोरीन का साइज जो है वो स्मॉल होता है. अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल अरेंज है एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे. तो जिस तरह से जो है अभी हमने यहाँ पे पीछे जो है वो देखा है, यहाँ पे जो है वो लिथियम, हीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लिथियम का जो साइज है दैट इज 152 पिकोमीटर, वाइल फ्लोरीन का जो साइज है दैट इज 72 पिकोमीटर. फ्लोरीन का साइज छोटा है, लिथियम का साइज बड़ा है. ऐसा क्यों? अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स अरेंज हैं. लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9, फ्लोरीन का 9 है. तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो जैसे जैसे जो है वो प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की ग्रिप ज्यादा हो रही है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की. पॉजिटिव चार्ज की ग्रिप ज्यादा हो रही है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की. लिथियम के पास अगर 3 प्रोटॉन है तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोरीन के पास अगर 9 प्रोटॉन है तो इसके पास 9 ही इलेक्ट्रॉन है. बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ट्विस्ट हेयर? वो पॉइंट ऑफ ट्विस्ट इज हेयर कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं, लिथियम के पास अगर 2 शेल है तो फ्लोरीन के पास भी 2 ही शेल है. न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो उससे ज्यादा नहीं हो रहा. न्यूक्लियस जो है इसी एक लाइन के अंदर, यहाँ पे देखिए लिथियम के पास कितने शेल है? 1 2. जबकि फ्लोरीन के पास कितने शेल है? 1 2. लिथियम के पास कितने आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1. जबकि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7. फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. तो अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, तो 9 ही प्रोटॉन. तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन. तो 3 प्रोटॉन जो है वो कम वीक है एज कंपेयर टू द 9 प्रोटॉन. तो यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर है. दैट्स वाई फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू द लिथियम. अब न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो जितने भी प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एटॉमिक नंबर तो ग्रुप में भी इंक्रीज करता है. तो ऐसा क्यों है कि ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है? तो ग्रुप में साइज इस वजह से इंक्रीज होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं. यहाँ पे आप देखिए लिथियम के पास कितने शेल थे? 1 2. फ्लोरीन के पास जो कि लास्ट एलिमेंट है पीरियड का,
इसके पास भी जो है वो 2 ही शेल हैं, जबकि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो जब हम देखते हैं इसी ग्रुप का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, लिथियम के पास 2 शेल हैं जबकि सोडियम के पास 3 शेल हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है न्यूक्लियस से। अब यहाँ पे अगर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को तीन प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम के पास भी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, तीसरा शेल ऐड हो गया है। तो ये शेल ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस की ग्रिप है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो वीक हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। As you move down the group, you gain more electrons which are in electron orbital further from the nucleus. Nucleus से दूर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. The nucleus has less pull the further out you move. जैसे जैसे यहाँ पे शेल ऐड होंगे, न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो वीक होती जाएगी इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो एक मैग्नेट है. अब मैग्नेट के करीब अगर आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो इसके करीब जो है वो फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. लेकिन अगर आप जो है जो आयरन नेल्स हैं वो अगर मैग्नेट से दूर रखेंगे तो मैग्नेट जो है वो उसको इतनी एफिशिएंटली जो है वो अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा. तो यहाँ पे आप इसको इसी तरह कंसिडर कर सकते हैं कि पीरियड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब रहते हैं, इस वजह से जो है वो न्यूक्लियस जो है उनको अच्छे तरीके से खींच सकता है, जबकि पीरियड में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, मज़ीद शेल्स यहाँ पे ऐड होते हैं, तो जो मैग्नेटिक पुल है एक एटम की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है. अब यहाँ पे जो है हमने एक अलग से ग्रुप जो है वो शो किया है एटॉमिक साइज ग्रुप ट्रेंड्स में, कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, कि जैसे जैसे हम जो है वो ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है. क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हर एटम के पास एक और शेल आ जाता है, एक और एनर्जी लेवल आ जाता है, इस वजह से एटम इज गेटिंग बिगर. अब यहाँ पे जो है वो इसका साइजेस जो हैं वो एटॉमिक रेडियाई पिकोमीटर में गिवन है. लिथियम का 152 पिकोमीटर है, जबकि इसी ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है सीजियम, उसका साइज जो है वो 265 पिकोमीटर है, तो ये इससे बड़ा है. एटॉमिक साइज का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? गोइंग फ्रॉम टू द लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द पीरियड द साइज गेट स्मॉलर. सोडियम का साइज बड़ा और आर्गोन का सबसे छोटा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम एनर्जी लेवल. तो बेसिक डिफरेंस क्या है एनर्जी लेवल का? एटॉमिक नंबर तो पीरियड में भी इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक नंबर तो ग्रुप में भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है एनर्जी लेवल का? एनर्जी लेवल ग्रुप में ऐड होते हैं, जबकि पीरियड में एनर्जी लेवल जो है वो ऐड नहीं होते. सेम एनर्जी लेवल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि देयर इज मोर न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर. तो यहाँ पे जो है वो एटॉमिक रेडियाई गिवन है. लिथियम का 152 है जो कि सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है, जबकि इसी पीरियड का लास्ट एलिमेंट नियोन, उसका जो है वो एटॉमिक साइज दैट इज 69 पिकोमीटर. अब ये तो हमने बात कर ली, ये सारा जो ट्रेंड था वो था नॉर्मल एलिमेंट्स का. नाउ व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? The trend of atomic size of the transition elements has slight variations when we consider this series in a period. The atomic size of the element first reduces or atom contracts, and then there is increase in it when we move from left to the right in the fourth period. अब वो क्या कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड में जो है वो साइज डिक्रीज करता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है वो इस तरह से नहीं होता. ट्रांजिशन एलिमेंट में पहले साइज थोड़ा होता है, उसके बाद जो है वो एकदम से साइज जो है वो ज़्यादा हो जाता है पीरियड के अंदर. यहाँ पे जो है वो पूरी जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में जो है वो इनको इन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें शो की है, टू शो दैट कि ग्रुप में साइज आहिस्ता आहिस्ता, तमाम ग्रुप्स में आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग, और हर पीरियड में जो है वो साइज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है. दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस. थैंक यू स्टूडेंट्स.